Hello subscribers, welcome back to my YouTube channel. So today we'll learn another plotting library which is Seaborn. Okay, so Seaborn is based on Matplotlib and we are done with Matplotlib in my previous session, right? So the Python visualization library Seaborn is based on Matplotlib and it provides a high level interface for drawing attractive statistical graphics. Okay, so it means if we want to create a basic or simple plot, right? So for that we use Matplotlib library. Okay, and if we want to draw a attractive graph, or you can say if we want to plot the categorical values, we use Seaborn library. Okay, so the basic steps to creating plots with Seaborn are: prepare some data, means we want to if we want to plot a graph of a data set, we have to load that first. And then control figure aesthetics, means if we want to you want to change the background of plot or add the labels and all. And if you want to add the title also, it all includes in our control figure aesthetics. Then the next is plot with Seaborn. So plot with Seaborn basically means we have to import the library and we have to use the different kinds of Seaborn plots, right? And the second is further customize your plot, means according to our query, we have to customize our plot. Like if we want to add some categorical values, we'll use a hue parameter, right? Like that. Okay, so ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिखे हुए हैं. Step 1, import Seaborn library. Then second is load data set, then styling of aesthetics, and then the plot the graph, add some labels, titles, etc., and then plt.show to see our Seaborn plot, right? So the first one is import Seaborn as NSS. Then the second is import NumPy, then pandas, then matplotlib. Okay, so next I'm loading dataset, that is tips. Okay, so simple. मैंने यहाँ पे df एक वेरिएबल लिया है एंड sns डॉट लोड डेटा सेट. तो जब हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करते थे तो हम df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv लिखते थे, राइट? सो सीबॉर्न लाइब्रेरी में एक ये और मेथड है कैसे हम अपने जो डेटा सेट है उसको लोड कर सकते हैं. तो इसकी जगह अगर आप सेम pd डॉट रीड csv भी यूज करते हो तो it will function same, right? So let's run this. Okay, so let's see the content of this first. So there are 1 2 3 4 5 6 7 number of columns and rows इसमें काफी सारी होंगी, वो हम इन्फो रन करके देख सकते हैं. So first is total bill, then tip, then 6, smoker, day, time और size, right? So इससे basically हमें ये पता लग रहा है कि ये एक रेस्टोरेंट का like डेटा सेट है जिसमें कि एक पर्टिकुलर इस कस्टमर का टोटल बिल इतना है, उसने टिप इतना अमाउंट दिया है एंड उसका सेक्स क्या था, वो स्मोकर था या नहीं, या वो कौन से डे को आया था, एंड देन टाइम लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एंड देन साइज मतलब कितने साइज में थे, वो कपल थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, लाइक दैट, राइट? सो let's also run the info to check the number of rows and columns or to check the null values, right? So यहाँ पे हमारे पास 244 एंट्रीज हैं, मतलब 0 to 243 रोज एंड सारी नॉन नल वैल्यूज हैं, सब में 244 नॉन नल वैल्यूज हैं, राइट? एंड डेटा टाइप्स इज कैटेगरी, फ्लोट एंड इंट. सो बेसिकली इसमें भी हम देख सकते हैं फ्लोट में हमारे ये 2 कॉलम्स हैं एंड देन दिस इज कैटेगोरिकल, smoker also, day also, and dinner time also, right?
एंड जो साइज है वो हमारा इंट है. सो यहाँ पे 1 2 3 4 कैटेगोरिकल है, मतलब कि यहाँ पे भी हमारे पास कैटेगरी में 4 है, राइट. सो नेक्स्ट इज SNS डॉट सेट स्टाइल. सो बेसिकली मैंने ये बैकग्राउंड के लिए यूज किया है वाइट ग्रिड. इसमें काफी सारे हैं, सो देख लेते हैं एक बस का डॉक स्ट्रिंग. सो सेट द एस्थेटिक स्टाइल ऑफ द प्लॉट्स, राइट. सो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो हमारा हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट ग्रिड के फॉर्म में होगा, राइट. सो फर्स्ट वन इज एक एग्जांपल देख लो कैसे प्लॉट करते हैं. सो जैसे हम मैटप्लॉटलिब में PLT डॉट करते थे, इसमें वैसे ही सेम SNS डॉट डिस्ट प्लॉट ये किसकी टाइप है, विल सी व्हाट इज दिस. सो डिस्ट प्लॉट एंड देन DF, और इसमें मैंने जो कॉलम है वो यूज किया है टिप, राइट. सो इसमें मैंने टाइटल यूज किया है PLT डॉट टाइटल माई फर्स्ट सीबॉर्न डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन शो. सो लेट्स रन दिस. सो ओके, तो यहाँ पे हमने टाइटल दिया था माई फर्स्ट सीबॉर्न एंड देन ये जो वाइट ग्रिड है ये हमारा सेट स्टाइल की वजह से है. एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ है, मतलब कि it plots probability distribution of a random variable, right. So we'll see this plot in detail. So this curve is known as KDE, right. So we'll see what is KDE also, okay. And if we want to like histogram, see the exact count on the y-axis, you have to remove this KDE curve. So let's remove this. KDE is equal to false because by default its value is true. So जो KDE curve था वो remove हो गया, and now on a y-axis we can see the exact count of these numbers, right. So let's see the disk plot in detail. Okay, so types of plotting with Seaborn. So basically there are three, or you can say more than three kind of plotting in Seaborn. So first one is statistical plotting, then categorical plotting, then matrix plotting, right. So first in today's session we'll do all statistical plotting, right. So in statistical plotting there are many plots like distribution plot, joint plot, pair, rug, and then KDE, right. So let's see the statistical plotting. So first one is our distribution plot, or you can say जो भी हमने ऊपर देखा dist plot, right. So it basically plot univariate distribution, means it plot the distribution between one variable, right. जैसे हमने यहाँ पे देखा था अभी एग्जाम्पल में कि हमने डिस्ट प्लॉट में सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम यूज किया, राइट. सो दिस इज बेसिकली द यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन that it provides a probability distribution of one random variable, and in this case our one random variable is this tip column of our tip data set, right. So next is univariate distribution is a probability distribution of only one random variable, right. This function combines the matplotlib hist function with the Seaborn. ओके, सो मैंने आपको बताया कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है वो बेसिकली हिस्टोग्राम ही है, एंड थोड़ी उसमें बस जस्ट एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस है जो कि हम सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज करके करते हैं, राइट. सो फर्स्ट इज सिंटेक्स. सो सिंटेक्स हम देख चुके हैं SNS डॉट डिस्ट प्लॉट एंड देन DF, और कॉलम हमने इसमें साइज लिया है. इसमें हम एक ही लेते हैं क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है वो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ KD इज इक्वल टू ट्रू बाय डिफॉल्ट, y एक्सिस इज शोइंग परसेंटेज मीन 0.25 और 1% समथिंग, राइट. सो ये भी मैं आपको चीज बता चुकी हूँ कि अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट काउंट देखना है तो आपको यहाँ पे जो KDE है वो फॉल्स करना होगा, एंड अगर ये KDE जो कर्व है वो ट्रू रहेगा तो यहाँ पे ये परसेंटेजेस के फॉर्म में काउंट शो करेगा, राइट. जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 0.25% और 1% लाइक दैट, राइट. सो
इसका मतलब ये है, हम इस ग्राफ से ये देख सकते हैं कि जो साइज है लोगों का, जैसे सिंगल पर्सन उनकी काफी कम परसेंटेज है, कपल की हाईएस्ट परसेंटेज है, राइट, एंड 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम, एंड देन 5 6 की भी बहुत ज्यादा कम परसेंटेज है, राइट. सो नेक्स्ट इज बेसिकली मैंने ये वैल्यू काउंट्स इसलिए यूज किया है टू सी द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम. जैसे यहाँ पे 1 का 4 है, देन 6 और 5 ऑलमोस्ट सेम था, 5 4 ही है, तो 1 5 6 ये ऑलमोस्ट कॉलम सेम है, राइट. एंड 2 है 156 वैल्यू मतलब काउंट, तो ये हम देख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा है, राइट. तो आप अपना जो डेटा है उसको रन करके भी देख सकते हो कि जो हमारा प्लॉट बन रहा है वो एग्जैक्ट उन वैल्यूज पे बन रहा है या नहीं, लाइक. तो ऐसे आप अपने, जैसे मैंने यहाँ पे साइज का वैल्यू काउंट चेक किया, तो ऐसे अपना डेटा से अपना प्लॉट टैली कर सकते हो, राइट. सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक और यूज किया है डिस्ट प्लॉट, जिसमें मैंने साइज कॉलम ही लिया है, केडी फॉल्स किया है, बिन्स 10 किया है, एंड देन कलर आर मतलब रेड लिया है. सो लेट्स रन दिस फर्स्ट. So by KD falls, the Gaussian distribution plot is removed, means the KD curve, you can say. Bins is equal to 10 means divide the interval according to given 10, right? So, and to see the bins change and to return y-axis and count, make KD is equal to false. Okay. So यहाँ पे हम अब अलग से मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो गया है, राइट. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो 2 की चलो ये काफी ज्यादा है, जो 5 की वैल्यू है वो 5 है, राइट. सो 5 की जो वैल्यू है वो अराउंड, यहाँ हम अब देख सकते हैं क्योंकि ये काउंट है, क्योंकि हमने जो केडी है वो फॉल्स करा है, राइट. तो जो ये 5 है एंड जो 2 है वो अराउंड 156 और 158 156 के अराउंड ही है, राइट. सो joint plot, so this is basically the customization, right. So next is joint plot. Joint plot is bivariate distribution, and by bivariate distribution means it's a probability distribution of two independent random variable. Okay, and by default joint plot uses scatter plot and histogram. So basically joint plot जो है वो हमारा bivariate distribution है, मतलब अब इसमें हम कोई एक कॉलम नहीं देंगे, कोई भी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देंगे, राइट. Okay, so next is joint plot can also display data using kernel density estimate, which is KDE, and hexagons. We can also draw a regression line in scatter plot by using Spearman function. We can print the correlation between two variables. Okay, so we'll see what are these means, and we can pass various parameters to joint plot, like kind, in which kind are regression, hexagon, KDE, then state function like statistic, by state function means statistical functions, which is Spearman, and color, size, ratio, etc. So let's see the first joint plot. So मैंने यहाँ पे sns.jointplot यूज किया है, और जिसमें मैंने बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 कॉलम्स ली हैं. फर्स्ट मेरी कॉलम है टोटल बिल, एंड देन the second is tip, and the color is Y, right. So let's run this. Y means yellow. Okay, so यहाँ पे मेरे पास एक प्लॉट आया है जिसमें कि जो x एक्सिस है वो टोटल बिल है एंड द y एक्सिस इज टिप. सो बेसिकली द ऑर्डर मैटर्स. ओके, तो मैंने यहाँ पे जो x है, जिस मैंने उसको वैल्यू दी थी कि x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, तो इसने बेसिकली क्या किया, लेबल्स ऐड कर दिए ऑन पर्टिकुलर एक्सेस, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल बिल में हमारे पास 10 20 30 40 50, एंड देन द टिप डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दैट. सो स्कैटर प्लॉट बेसिकली हमने देखा था मैटप्लॉटलिब में कि कोई पर्टिकुलर जो x और y की वैल्यू होती है, ये जिस वहाँ पे एक डॉट क्रिएट करता है. सो हिस्टोग्राम भी हमें पता है, इट शोज द काउंट, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक क्लस्टर बन रहा है, राइट. मतलब जो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है. तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल बिल
around 10 to 20, you can say 10 to 18, right? So जो 10 to 18 बिल था, तो उसकी जो टिप है वो अराउंड 2 थी, राइट? और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बहुत ज्यादा है ऑफ दिस रेंज, राइट? और ऐसे ही हम सेम यहाँ बोल सकते हैं कि लाइक 15 टू 20 का जो टोटल बिल है वो बहुत ज्यादा बना है, सॉरी, एंड जो उसकी टिप रही है वो अराउंड 3.5, यू कैन से 3.5 से 4 के बीच में लाई कर रही है, राइट? एंड जैसे जैसे जो हमारा स्कैटर प्लॉट है जहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स हमें शो हो रहे हैं, वैसे ही जो हिस्टोग्राम का जो हिस्ट है और यू कैन से काउंट है वो ज्यादा है उन पर्टिकुलर पोजिशंस पे, राइट? ऐसे ही सेम हमारे ऊपर वाले हिस्टोग्राम प्लॉट के लिए, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ज्यादा क्लस्टर है एंड देन द सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इन दिस एरिया, तो उसी पर्टिकुलर जगह पे जो हमारा हिस्टोग्राम है उनका जो यू कैन से लेंथ है वो ज्यादा है, राइट? So there are different kinds by which we can see joint plot. So first one is sns.joint-plot, then उसमें मैंने kind दी है regression, the second one is kind hexagon, and the third one is KDE. So first kind is sns.joint-plot, y, x and y are same, then data is equal to df, means the data set name, right? And then next is kind, so we'll see regression plot first, and मैंने यहाँ पे कलर दिया है उसको G means green, okay? So okay, so basically ये regression plot क्या करता है? Basically it creates a best fit line. So by the best fit line, so basically best fit line means कि ये एक ऐसी पर्टिकुलर लाइन है जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट? जैसे जो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पॉइंट्स हैं एंड राइट हैंड साइड जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहती है, एंड जो ये लाइन है ये वो इंश्योर करती है कि इस पर्टिकुलर लाइन से ये मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो पास करेंगे, राइट? मतलब कि जो ये लाइन ऐसे एंगल और ऐसे मतलब ऐसे स्लोप और ऐसे इंटरसेप्ट को लेके बनती है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है इसके मैक्सिमम पास करते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास जो KD कर्व भी ड्रॉ हो गया है, सो ये दिस इज perfectly normal distribution curve. Perfect normal distribution curve means it has no outliers. So basically outliers, is like the odd one out. जैसे यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो इस रेंज में है, सो जो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है ये आउट ऑफ द रेंज है सबसे अलग, तो इसको हम इट्स क्लासिफाइड एज एन आउटलायर. सो अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर्स ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे एक बम्प लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक स्मॉल कर्व यू कैन से. जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं ये परफेक्टली कर्व नहीं है, जैसे इसमें दोनों लाइंस ऐसे पर्टिकुलरली मतलब एग्जैक्ट कर्व है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा आउटलायर, तो बेसिकली ये इन्हीं 2-3 पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा है, राइट? सो जो ये आउटलायर्स है वो हम इसमें देख सकते हैं कि ये स्लाइट कर्व है इसमें, ओके? सो नेक्स्ट इज काइंड हेक्सागन. So it replaced the scatter plot with a joint histogram using hexagonal bins. तो जो हमारा स्कैटर प्लॉट था इसने बेसिकली उन पॉइंट्स को हेक्सागोनल फॉर्म में चेंज कर दिया है, जो इसकी शेप है वो हेक्सागन के फॉर्म में है. एंड जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि जितना डार्क कलर होगा उतना जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट्स का वो ज्यादा होगा. जैसे जो यहाँ पे पर्टिकुलर ये 3 जो डॉट्स हैं जो हेक्सागन है, यहाँ पे ये हमें ये बता रहे हैं कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम है, राइट? और जैसे जैसे जो लाइट होता रहेगा, जैसे ये लाइट है काफी ज्यादा, तो ये बता रहे हैं कि ये सिंगल है या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा कम है, राइट? सो द नेक्स्ट इज KDE. ओके, सो बेसिकली ये भी कलर इनकोडिंग के फॉर्म में शो करता है.
तो जहाँ पे जो डार्केस्ट कलर होगा वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो मैक्सिमम होगा, एंड जैसे जैसे जो कलर का शेड है वो लाइट होता जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें बहुत ज़्यादा कम है. ओके, सो नेक्स्ट इज पेयर प्लॉट. Okay, so let's run the pair plot first, then I'll explain the description. Okay, so we just simply write SNS dot pair plot and the name of our data set, right? And in this case, our data set name is DF. Okay, so it's just like this. Okay, so pair plot, it represents pair-wise relation across the entire data frame and supports an additional argument called hue for categorical separation. What it does basically, it creates a joint plot between every possible numerical column. Okay, so let's see this first. तो ये कह रहा है कि ये पेयर वाइज प्लॉट करता है अक्रॉस द एंटायर डेटा फ्रेम, राइट. सो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स थे, जैसे यहाँ पे हमारे पास थे, लेट्स रन द इन्फो अगेन. तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोट वैल्यू में है टोटल बिल, तो टोटल बिल है हमारे पास, टिप होगा एंड देन साइज होगा. ये तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, राइट. सो यहाँ पे मेरे पास टोटल बिल है, टिप है और साइज है. ऐसे यहाँ पे टोटल बिल, टिप एंड साइज, राइट. सो ये जितने भी हमारे पास डेटा फ्रेम में न्यूमेरिकल वेरिएबल होंगे उनमें पेयर वाइज प्लॉट करेगा. ओके, एंड द diagonals are in the histogram plot and the remainings are in scatter plot, right. So it basically contains scatter and histogram plots, right, plotting the same variable or univariable. means अगर जैसे यहाँ पे जो y एक्सिस में टोटल बिल है और x एक्सिस में भी टोटल बिल है, अगर दोनों सेम वेरिएबल हैं तो वो हिस्टोग्राम प्लॉट क्रिएट करेगा, एंड डिफरेंट है तो वो स्कैटर प्लॉट क्रिएट करेगा, राइट. एंड वी कैन यूज एन एडिशनल आर्ग्यूमेंट कॉल्ड ह्यू फॉर कैटेगोरिकल सेपरेशन. सो ये हम देखेंगे कि जो हमारी अब इसमें कैटेगोरिकल वैल्यू, जैसे हमारे पास 3-4 कॉलम्स है, जैसे सेक्स, डे, स्मोकर, राइट. सो लेट्स प्लॉट these also, and इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि shows in histogram and other are scatter, that is the diagonal graphs are of histogram, right. and basically the diagonal acts as a mirror. जैसे यहाँ पे जो मेरे पास ये डायगनल मतलब डायगनल प्लॉट्स हैं, ये जस्ट एक मिरर की तरह एक्ट कर रहे हैं. मतलब कि जो ये है वो इसका मिरर इमेज ही है बेसिकली. जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो राइट हैंड साइड का बेसिकली मिरर इमेज ही है, क्योंकि जैसे ये टोटल बिल और टिप के बीच में ये वाला प्लॉट है, राइट, दिस वन. ऐसे ही जो ये वाला है वो टिप और टोटल बिल के बीच में है. तो जस्ट एक्स और वाई एक्सिस जो है वो रिवर्स है, बाकी जो प्लॉटिंग है वो बेसिक सेम है, राइट. सो Hue sets up the categorical separation between the entries of the dataset. Palette is used for designing the plots, or we can say to change color. So let's use the hue. तो मैंने यहाँ पे sex assign किया है, and palette means just color, right? Okay, so let's run this. तो बेसिकली ये एक पेयर प्लॉट क्रिएट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ, और यू कैन से ऑन द कैटेगरी ऑफ ह्यू इज इक्वल टू सेक्स. सो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेक्स है वो कलर इनकोड हो गया है बिटवीन मेल एंड फीमेल. तो मेल को कुछ ब्लू ग्रीन समथिंग कलर है और फीमेल को डिफरेंट कलर है. तो जो भी हमारे ग्राफ्स प्लॉट होंगे अब वो कैटेगराइज हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कॉलम, राइट. सो जो हमारा ये प्लॉट है टोटल बिल और टिप का, तो इसमें हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मेल्स हैं वो कितने थे और नंबर ऑफ फीमेल्स ने कितने थे, राइट. मतलब कि जैसे ये पर्टिकुलर टिप और पर्टिकुलर टोटल बिल में ये जो पॉइंट है, तो वो जो पॉइंट है वो मेल
सेक्स का था, राइट। सो इसमें हमने अब दो वेरिएबल्स का डेटा ना लेके तीन वेरिएबल्स को एक प्लॉट में एनालाइज कर रहे हैं, ओके। So next is rug plot. So it plots data points in an array as sticks on an axis. Just like a disk plot, it takes a single column. Instead of drawing a histogram, it creates dashes all across the plot. Okay. So rug plot basically क्या करता है कि like array क्रिएट करता है एज स्टिक्स ऑन अ पर्टिकुलर एक्सेस। अगर हम एक्सेस एक्स देंगे तो जो वो स्टिक्स फॉर्म में है वो एक्स एक्सेस पे क्रिएट हो जाएंगी, और अगर वाई देंगे तो वाई पे, राइट। सो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, SNS.rugplot। सो मैंने यहाँ पे जो टोटल बिल यूनिवेरिएट वेरिएबल लिया है और एक्सेस मैंने वाई लिया है, तो इसने जो स्टिक्स हैं वो वाई एक्सेस पे क्रिएट कर दिए हैं, एंड कलर मैंने इसमें आर डिफाइन किया है, राइट। सो ये बेसिकली हिस्टोग्राम क्रिएट नहीं करता। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये हिस्टोग्राम होते तो इस फॉर्म में होता है, लाइक यहाँ पे ये जो इनकी लेंथ है वो थोड़ी लॉन्ग होती है, राइट। तो ये जस्ट स्टिक्स के फॉर्म में शो करता है और ये काउंट ही शो करता है। तो लेट्स चेंज द एक्सेस टू एक्स। सो अब इसने क्या किया, जो स्टिक्स था वो एक्स एक्सेस पे क्रिएट कर दिया, राइट। एंड इफ यू कंपेयर इट विद अ जॉइंट प्लॉट, यू कैन सी दैट व्हाट जॉइंट प्लॉट डज इट, that counts the dashes and show it as bins, right? So they are building block of KDE plot. Okay, so next we'll see KDE plot. So it's basically kernel density estimation plots. It depicts the probability density at different points in a continuous variable. Okay, so we can also plot a single graph for multiple samples, which help in more efficient data visualization. Okay, so let's run the KDE plot. So basically ये क्या बताता है हमें, डेंसिटी बताता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की, उस पे जो उसकी डेंसिटी है वो क्या होगी, राइट। जैसे कि 10 to 20 के बीच में जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट है, राइट। ऐसे ही ये थोड़ा सा कर्व जो ये आ रहा है यहाँ पे, कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आउटलायर्स थे हमारे पास 50, अराउंड 50, राइट। सो this is about statistical plotting. In next session, we'll see categorical plotting and matrix plotting. Okay. Thank you one and all.